Hello dear students, today JEE questions. Now see question number first. The value of summation n equal to 1 to 100 integral n minus 1 to n e raised to x minus greatest integer x into dx where bracket x is the greatest integer but less or equal to x is what? Your options are 100e 100 into e minus 1 and 100 into 1 plus e, 100 into 1 minus e. So you have to simplify summation n equal to 1 to 100 into integral n minus 1 to n e raised to x minus greatest integer x. So you can say into dx. So now we start solution for this question and to find the correct answer out of A, B, C and D. It is only one correct option is there. So now see the solution. Since summation n equal to 1 to 100 into integral n minus 1 to n into e raised to x minus greatest integer x into dx. So how will you simplify it? It is given that x is greatest integer but not greater than x. Therefore, so as n minus 1 is less or equal x is less n because it is x is greatest integer but not greater than x. Therefore, bracket x equal to n minus 1 taking its lower limit here. So x is n minus 1. Which x? Bracket x, or you can say box x, or greatest integer x value n minus 1. Therefore, we solve only integral part. First we simplify only integral part. So what will happen here? So therefore integral n minus 1 to n e raised to x minus n minus 1, because here greatest integer x value is n minus 1. So e raised to x minus n minus 1 into dx equals integral n minus 1 to n e raised to x minus n plus 1, because here it is minus minus becomes plus. Just open the bracket for here into dx. Now integrate it by simple formula of integral e raised to x. So integral of e raised to x minus n plus 1 is e raised to x minus n plus 1, but limit n minus 1 to n. Now taking limit, first we take upper limit and then lower limit. So this will be e raised to n minus n plus 1, n minus n plus 1, because we put x equal to n upper limit, and then lower limit minus e raised to n minus 1 minus n plus 1. So we see that here plus 1 minus 1 get cancelled, minus n plus n get cancelled, so this will be e raised to 0, and here n get cancelled, we get e raised to 1. Therefore integral of n minus 1 to n e raised to x minus n minus 1 into dx equals e minus 1, because e raised to 0 is 1. You can check here. Therefore summation n equal to 1 to 100 into integral n minus 1 to n e raised to x minus greatest integer x into dx equals n equal to 1 to 100, and value of this integral part is e minus 1 from here. We substitute here. So since e and 1 both are constant, therefore e minus 1 is constant. So taken out it, therefore summation n equal to 1 to 100 of 1. So summation n equal to 1 to 100 of 1 becomes what? 1 plus 1 plus 1 plus 1, 100 times. That is, it will be 100 only. Also summation 1 equal to n and limit, highest limit is 100. So this will be 100. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 from 1 to 100, that is 100 times. So it is equal to 100 into e minus 1. Therefore option B, 100 into e minus 1 is the correct answer. Now see question number 2nd. This is a very important question for JEE and other competitive exams also. Question number 2. If sin inverse x upon A equals cos inverse x upon B equals tan inverse y upon C, provided that 0 is less x is less 1, then the value of cos of pi c upon A plus B is.
Your options are A 1 minus y square upon 2y and B 1 minus y square upon y root y, C 1 minus y square and D 1 minus y square upon 1 plus y square. Now see the solution for the correct option. Its solution, since sin inverse x upon A equals cos inverse x upon B equals tan inverse y upon C, it is given. Therefore, it can be written as sin inverse x upon A equals cos inverse x upon B equals sin inverse x plus cos inverse x upon A plus B. Here it is sin inverse x plus cos inverse x upon A plus B using theorem on equal ratios. You can check here, by theorem on equal ratios, you can add them in numerator and also in the denominator, and the third term will be same. वैसे अगर थर्ड टर्म भी ऐड करना होता तो इसको भी ऐड कर सकते थे, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर इज आल्सो इक्वल, बट वी रिक्वायर्ड ओनली टू टर्म्स, सो डू नॉट टेक थर्ड टर्म इन द एडिशन. So by theorem on equal ratios, you can say it is equal to sin inverse x plus cos inverse x upon A plus B equals tan inverse y upon C. Therefore, it can be written as, now see this, sin inverse x plus cos inverse x is pi upon 2. So we write here pi upon 2 upon A plus B will be same equals tan inverse y upon C, that is right hand side will be same. Since sin inverse x plus cos inverse x equal to pi upon 2, it is a formula provided that 0 is less x is less 1. So using this formula here in the numerator, we get sin inverse x plus cos inverse x as pi upon 2. How it is possible? Because it is a formula, and formula possible यहाँ पर डायरेक्टली तो दिया नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. क्योंकि थियरम ऑन इक्वल रेशियोज ये बताता है कि इफ यू ऐड न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर, so they will be equal to each term. So each term becomes sin inverse x plus cos inverse x upon A plus B. It is also equal to tan inverse y upon C, also equal to cos inverse x upon B, also equal to sin inverse x upon A. तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा यहाँ से वो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ से हमको क्या रिक्वायरमेंट लेना था? सिर्फ ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x एक साथ हो जाते हैं तो हमें इसका वैल्यू पाई अपॉन 2 मिल जाएगा. क्योंकि देखो हमें आंसर में लाना है cos ऑफ पाई c अपॉन a प्लस बी. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ पाई c अपॉन a प्लस बी. तो यहां से हमें पता चलता है कि हमें पाई सिर्फ एक ही वे है फाइंड करने का, ओनली वन वे, इफ वी ऐड दीज टू टर्म्स. तो चलो इस तरह से ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो उसका रीजन तो देना पड़ेगा. तो ऐड करने के बाद हमें रीजन क्या देना है कि बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दो कि बहुत सी जगह सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन क्या है इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर नहीं है और कहीं कहीं पर बहुत से प्रिंटिंग मिस्टेक्स आए हैं, जैसा कि बच्चों ने हमें बताया है ऐसे हैं. तो इसके लिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फार्मूले के साथ प्रोवाइड कर दिया है कि कोई भी डाउट ना हो. इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड अगेन फॉर दैट क्वेश्चन सोल्यूशन. जो भी होगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा या अगले वीडियो में. तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन सी विल बी इक्वल टू, अभी देखो फाइनली इक्वल होते होते ये पाई अपॉन 2 अपॉन ए प्लस बी इज tan इनवर्स वाई अपॉन सी. तो पाई अपॉन 2 अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स tan इनवर्स वाई अपॉन सी. ये वैल्यू यहाँ से इतने को हमने ले लिया, इतना, क्योंकि ये दोनों का यूज हमने यहाँ पर कर लिया, तब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आगे हमें यूज भी नहीं है. तो टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ रेशियो, so we get pi upon 2 because its numerator becomes pi upon 2 by this formula. तो चलो आगे चलते हैं अभी. तो therefore pi upon 2 into a plus b, 2 goes down, so pi upon 2a plus b equals tan inverse y upon c. Now we need 2 pi into c, so taking c on the left hand side, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 2 टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो ये राइट हैंड साइड आकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्रॉस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, तो वी गेट पाई सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स 2 इंटू tan इनवर्स वाई
राइट। अब ये देखना है कि हमें जो आंसर फाइंड करना था उसमें हमें चाहिए था कॉस, राइट, कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी। तो हमें अब इसमें कॉस कहीं पर है, ढूंढो, देखो मिलेगा, है कहीं पर कॉस दिखाई दे रहा है? नो, देयर इज नो कॉस टर्म। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड वी डू, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, ऐसा कर सकते हो, यस, कॉस साइन टेन कॉट सेक जो भी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो ले सकते हो। तो टेकिंग कॉस रेशियो ऑन बोथ साइड्स वी गेट cos of pi c upon a plus b equals cos of 2 tan inverse y। तो cos of pi c upon a plus b तो मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन हमारा जो आंसर है वो cos of 2 tan inverse y नहीं है। हमारे ऑप्शन में कुछ अलग ऑप्शन दिया है जो सिर्फ y के टर्म में दिया है, राइट। तो अब इसको हम चेंज करते हैं कि यहां से cos एंड 2 tan इनवर्स ये सब हमें एलिमिनेट करके हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड है, आइए आगे चलते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो इसका डायरेक्टली फार्मूला है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला न लिख करके इसको अज्यूम करो कि tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा, ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम करने के बाद हमें जो स्टेप दिखाई देगा वो ठीक सामने देखो। तो देयरफॉर y इक्वल टू tan थीटा, अगर tan इनवर्स y थीटा है तो tan इनवर्स y इज थीटा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स y इक्वल टू tan थीटा, वी गेट y इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर cos ऑफ 2 tan इनवर्स y कैन बी रिटन एज cos ऑफ 2 थीटा, राइट, क्योंकि इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया है ये पार्ट को। तो ये हो गया cos ऑफ 2 tan इनवर्स y इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा, and cos 2 theta has a formula 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, इस फॉर्म में है। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या है जो हमने अज्यूम किया था, y, देखो tan थीटा इज y, चलो उसकी वैल्यू भी रख देते हैं। तो देयरफॉर cos ऑफ 2 tan इनवर्स y इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, हो गया tan थीटा इज y, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसको अपने ऑप्शन में देखते हैं तो हमें मिलता है कि cos ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ऑप्शन डी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने जेईई स्पेशल सीरीज नाम रखा है उसका, जेईई स्पेशल सीरीज, और जेईई के हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि राजेंद्राज टीचिंग में चैनल प्लेलिस्ट में मैंने जेईई की प्लेलिस्ट अलग कर दिया है। वैसे इसके ट्रिकी क्वेश्चंस भी देखोगे, जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें चैनल की, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन में भी जाओ, उसमें भी जेईई एंड सीईटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो जेईई प्लेलिस्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, ये दोनों को देखना है। ये दोनों में देखने पर हमें जेईई एंड सीईटी के ऑल क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस समय एग्जाम बहुत ही नज़दीक है अभी, जेईई एग्जाम, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जितने भी फार्मूले हैं, ऑल फार्मूले अब रिवाइज करने का समय आ गया है। तो मैंने फार्मूला लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड अदर चैप्टर्स आल्सो व्हिच आर ऑलरेडी अपलोडेड। So you should refer my previous videos also for the formula list, for the tricky questions and other important questions. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और रिमेंबर रखने के लिए अपने जेईई एंड सीईटी एग्जाम के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू।